Hello, my dear students of class 10th. I am again back with a new video on MCQs. So this is an MCQ session on your unit light, which is a very important unit for your first semester examinations. Your first semester examinations has been postponed recently, and very soon its new schedule will be provided by the council. Until then, we have to keep preparing really well during these extra days that you have got. Now, talking about this chapter, light of physics, this is one of the most important most important unit of physics. If you go through the specimen paper provided by the council, the specimen paper for your first semester, if you look at that paper of physics, you will find that most of the questions are from this topic, this unit, light. Your light unit has 3 chapters: refraction through plane surfaces, refraction through lens, and then you have spectrum. In this video, I have covered those 2 chapters, those first two chapters of the light unit, which is refraction through plane surfaces and refraction through lens. Spectrum is not covered in this video. That we will cover up in some another video. That chapter is quite simple and very theoretical based. So I have not included that chapter in this video. Here in this video, we will be talking about the very important concepts of refraction through plane surfaces and lens. And very important questions are going to be discussed in this video. So without wasting any time, let us start our MCQ session. Here is your first question of MCQ. For which angle of incidence the direction of light does not change when it passes from one medium to another? We know that during refraction, light actually changes its direction when it passes from one medium to another. But then for which angle of incidence the direction of light will not change? It is 0 degree. You see, if this is the surface, suppose this is a medium, say medium 1, it may be a rarer medium or a denser medium, while the other one is again another medium. So you see, both of the mediums are there. If a light ray is like going through an oblique angle of incidence, and if medium 1 is rarer and medium 2 is denser, then this light ray will bend towards the normal. And the opposite will happen if this light ray moves from denser to rarer. In that case, it will bend away from the normal. But the question asks that unlike this case where the direction of light changed, what should be the angle of incidence if the light does not change its direction? And it is in this way. If the light ray is perpendicular on the surface of the medium, that means this angle is 90 degree, but angle of incidence is not 90 degree. You must not get confused. This angle is not the angle of incidence. Angle of incidence is that angle which this incident ray makes with the normal. So you see, this line is the normal, the red line is the normal, whereas this line which I drew initially, the black line, was the incident ray. Both of those lines, the incident ray as well as this normal, actually they coincide, means they lie one on each other. So that means the angle between these two lines, the normal and the incident ray, is 0 degree. So it is in this case, the ray will pass undeviated, means it goes straight down without any change in its direction. Next question. Which one of the following relations is true over here? The symbols have their usual meanings. We know this formula is very common. We have even studied this in class 9th. V equals to F lambda. This is the formula that we know to be true. Okay, so the first option, V equals to F lambda, is correct. All other options are wrong. Moving to the next question. Which of the following statements is incorrect? Means you have to select the wrong statement. Let me read all the options for you. When a ray of light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. Is it so?
when it moves from rarer to denser medium, it bends towards the normal. This is what just I told you कि rarer से denser जाएगा तो definitely वो towards the normal ही bend करता है. So this is a correct statement. Hence, this is not our answer. The second option is when a ray of light passes from one medium to another such that the refractive index of both the medium is same, then the light passes undeviated. बिल्कुल सही बात है. What does this mean? Suppose you have two mediums, medium 1 and medium 2, but the refractive indices of both of the mediums are same. This is medium 1, इसका refractive index मान लो mu है, दूसरा medium है, हो सकता है वो डेंसर मीडियम हो और दूसरा रेयर मीडियम हो, या पहला वाला रेयर हो दूसरा डेंसर हो, कुछ भी हो सकता है, बट दे हैव इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम इन बोथ ऑफ द मीडियम्स. तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो लाइट रे है वो अनडेविएटेड पास कर जाएगा, वो अनडेविएटेड पास कर जाएगा, इवन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज not 0 degree. You see, if you draw the normal, you have some angle of incidence over here, which is not 0 degree. Even in that case, the ray will not bend at all. It will neither bend towards the normal, nor will it bend away from the normal. You see, it will go undeviated. And this is what this statement is telling. So this statement is correct. Hence, this is not the option. The third option is lateral displacement does not depend on angle of incidence. This is an incorrect statement, because under the topic of lateral displacement in your book, in your chapter you have studied, there is a topic factors affecting lateral displacement. Lateral displacement किस factor पे depend करता है, उसमें से एक factor है angle of incidence. If angle of incidence is more, the lateral displacement will be more. If angle of incidence is less, the lateral displacement will be less. So angle of incidence actually influences the lateral displacement. So usko affect karta hai. So this is a wrong statement. Hence, this is our answer. Let me read the fourth option. During refraction through a rectangular glass block, the angle of incidence is always equal to angle of refraction. क्या लिखा हुआ है? During refraction through a rectangular glass block. तो मैं इस फिगर में एक फिगर, इधर मैं एक फिगर बनाता हूँ. रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है और यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है. ओके, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये लाइट रे बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो यहाँ पे जो हमारा ये एंगल आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, दोनों कहाँ इक्वल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एक्चुअली मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. बट यस, अगर मैं यहाँ एक और रिफ्रैक्शन यहाँ जो वो बाहर आ रहा है वो रे, उसको बनाओ, यू विल गेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस. The angle of incidence and angle of emergence are always equal in a rectangular glass block. लेकिन यहाँ पे angle of incidence और angle of refraction की बात की गई है, तो this is an incorrect statement. This is an incorrect statement. So here, both of these statements are actually incorrect, and both of these options are incorrect. So you have such types of questions in your specimen paper also, which are of 2 marks, and 2 options may be the answers to that question. So this is one of such questions where you have to select both of the options. Multiple options are correct, means more than one options are correct. ठीक है? अगर यहाँ पे होता एंगल ऑफ इमरजेंस लिखा हुआ होता, तो फिर ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होता और ये आंसर नहीं होता. हमें इनकरेक्ट को पिकअप करना था. ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The refractive index of water is 4/3 and that of glass is 3/2. What is the refractive index of glass with respect to water? So we have refractive index of water. This is given, mu of water 4/3. Refractive index of glass is given, which is 3/2. We have to find the refractive index of glass with respect to water. Means refractive index of glass with respect to water. This is unknown. We know a very easy formula.
Okay, listen to it. Refractive index of glass with respect to water is basically refractive index of water divided by refractive index of glass. ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है. क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे यूज किया है. सो आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन इन द क्वेश्चन 4/3 और नीचे हमारा डिवाइडेड है तो डिवाइडेड मतलब मैं मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा कर दूंगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 तो इसको उल्टा कर दिया 2/3 कि डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल से एंड दिस विल बी 8/9. सो यू हैव द फर्स्ट ऑप्शन 8/9 एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन टू इट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following quantities of light does not change on refraction? Refraction होने के बाद भी light के कौन सा quantity change नहीं होता है? We know that speed of light definitely changes upon refraction, and in fact, this is a cause of refraction. हम जानते हैं wavelength of the light also changes. What does not change is frequency of the light. The frequency of the light remains constant. Hence, our answer to this question is frequency of light. So this is the answer which does not change on refraction. एक factor होता है amplitude, वो भी change करता है. The amplitude of light also changes. तो अगर तुम्हारे यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है amplitude, तो वो भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होता क्योंकि amplitude भी चेंज करता है. तो कौन सा फैक्टर चेंज नहीं करता है रिफ्रैक्शन के बाद? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the following figure, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूं. In the following figure, the refractive index of liquid with respect to air is, ठीक है, यहां पे अब तुम्हें दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन. The refractive index of liquid with respect to air is, अब देखो हम जानते हैं स्नेल्स लॉ के द्वारा एक फॉर्मूला. कौन सा? स्नेल्स लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो of liquid with respect to air, मतलब refractive index of liquid with respect to air. इसका मतलब refractive index of second medium with respect to first medium, जो कि हमारा second medium liquid है, first medium हमारा air है. तो it is given by sin I upon sin R. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में तुम लोग पढ़े हो. तो साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे चाहिए. फिगर में देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, हमें नॉर्मल के साथ निकालना है. ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा इंसिडेंट रे, तो ऑब्वियसली ये पूरा 90 है. तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस 30, सो 60 डिग्री है. यानी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस 30 60 डिग्रीज है. तो साइन आई के जगह मैं साइन 60 लिखूंगा. नीचे साइन आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो आर मतलब ये एंगल हमें चाहिए क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 60 डिग्री नहीं है, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का क्या एंगल है? ये पूरा एंगल 90 है. सो 90 माइनस 60 इज 30 डिग्रीज. तो हमारा आर 30 है, तो साइन 60 अपॉन साइन 30 हमें करना है. साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है हमारा? साइन 30. साइन 30 का वैल्यू 1/2. तो मैं मल्टीप्लाई करके 1/2 को रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो 2/1 हो गया, यानी 2 कट गया एंड वी आर लेफ्ट विद √3. सो आवर ऑप्शन ए √3 इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत सिंपल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जहां तुम्हें लगे कि वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर लो, क्वेश्चन को लिख लो, सॉल्यूशन को लिख लो, समझ लो. जहां लग रहा है कि इसे थोड़ा स्लो डाउन करके सुनना है वो भी कर लो, जहां रिवाइंड करके रिप्ले करना है वो कर लो, लेकिन क्वेश्चंस सारे बहुत अच्छे से समझो. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर मूविंग टू. विच, इसको मिटा दो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with respect to angle of deviation produced by the prism is true. मतलब एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर रेड लाइट एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट. हम जानते हैं रेड लाइट जो होता है वो बहुत कम डेविएट करता है.
वायोलेट लाइट बहुत ज्यादा डेविएट करता है, सो एंगल ऑफ डेविएशन वायोलेट में लिख लो इस चीज को, वायोलेट में एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा मैक्सिमम होता है। और रेड लाइट के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा वो मिनिमम होता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई रेड लाइट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल्स, ताकि बहुत दूर से भी रेड लाइट को हम देख सकते हैं। तो रेड लाइट को एज अ डेंजर सिग्नल, एज अ कहीं पे स्टॉप सिग्नल है रेल, जैसे ट्रैफिक लाइट्स में रेड एज अ स्टॉप सिग्नल, डेंजर सिग्नल यूज किया गया है, ताकि सबसे दूर से हम रेड को देख सकते हैं, बिकॉज रेड कैन ट्रैवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंसेस विदाउट डेविएटिंग, मतलब अपने रास्ते से भटकता नहीं है, सीधा दूर तक जाता है। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर रेड लाइट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन आगे के ऑप्शंस को भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि मैंने ट्रू तो आंसर मुझे मिल गया है तो आंसर सिलेक्ट हो गया, देयर कुड बी अदर ऑप्शंस आल्सो ट्रू। The second option says the angle of deviation first decreases with increase in angle of incidence and then reaches a minimum value, and then it increases with increase in angle of incidence. एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, angle of deviation first decreases with increase in angle of incidence, then it reaches a minimum value, and then again it increases with increase of angle of incidence. Now this point is also very, very important, and it is true. Hence A and B both are true statements. So option C is actually your answer, which says both statements A and B are true, and this is the correct option that you have to select. Now let me discuss this second point B with you people. Again, I'm telling you the second point B is super important. Numerous times in boards they have asked questions from this second point B. They have framed questions, varieties of questions can be framed from this second point. Basically, this point tells us how does angle of incidence and angle of deviation, they depend, or they have the, what is the relation between them. तो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब मैं इनिशियली इंक्रीज करता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है। सुनो, ये बात समझने की कोशिश करो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता है तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक होता है। So, क्या लिखा हुआ है, देन इट रीचेस अ मिनिमम वैल्यू, ये डेल्टा, ये एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करते 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 एक मिनिमम वैल्यू जिसको डी मिन बोलते हैं उस तक पहुंचता है। मतलब ये डेल्टा डिक्रीज तो इनिशियली कर रहा है, लेकिन एक हद तक डिक्रीज करता है, तो इट रीचेस अ मिनिमम वैल्यू। उसके बाद फिर आई को जब मैं इंक्रीज करता हूं तो डेल्टा जो है एंगल ऑफ डेविएशन फिर इंक्रीज करता है, तो डिक्रीज नहीं करता, उसके बाद फिर इंक्रीज करता है। सो दिस इज द सिनेरियो यू हैव टू अंडरस्टैंड। इनिशियली व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस and decreases up to a minimum value which is known as d min, and after that when angle of incidence is increased, then delta, that angle of deviation, also increases. इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसको आईडी कर्व बोलते हैं। हालांकि डेल्टा को हम इधर प्लॉट करते हैं, आई को इधर प्लॉट करते हैं। आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस, एंड डेल्टा व्हिच इज एंगल ऑफ डेविएशन इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, बट वी इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट डेल्टा आई कर्व, वी कॉल इट आई डेल्टा कर्व। ओके, नाउ यू सी एज आई इज इंक्रीजिंग डेल्टा विल डिक्रीज, तो ग्राफ पहले ऐसे गिरेगा, आई बढ़ रहा है लेकिन डेल्टा घट रहा है, लेकिन डेल्टा एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू तक आएगा, उसके बाद फिर वो इंक्रीज करता है। सो दिस पॉइंट, लेट मी शो यू विद अदर कलर, दिस पॉइंट, इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है डेल्टा का, दिस इज डी मिन, मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेल्टा मिन के बाद फिर वो डेल्टा इंक्रीज करने लगता है विद फर्दर increase of angle of incidence. This graph is very, very important graph. Moving to the next question. One minute. Yes. Likho. In refraction of light through a prism, the light ray, option A, suffers refraction only at one face of the prism. अब ये प्रिज्म में हम लोग आ गए, प्रिज्म ये भी प्लेन सर्फेसेस ही है, लेकिन एक अलग यूनिट में पढ़ाया गया है प्रिज्म। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो हम एक प्रिज्म पहले बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ में आएगा। दिस इज अ प्रिज्म, व्हेन दे से प्रिज्म इट बेसिकली मींस अ ट्रायंगुलर प्रिज्म बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, द लाइट रे सफर्स रिफ्रैक्शन ओनली एट वन फेस ऑफ द प्रिज्म,
क्या एक ही फेस पे रिफ्रैक्शन होता है? नहीं, देखो यहाँ पे लाइट रे आया और ये क्या हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, क्योंकि वो ग्लास में एंटर कर रहा है, एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। और फिर एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, मतलब दूसरे फेस में भी रिफ्रैक्शन होगा, जब वो ग्लास से एयर में जा रहा है, तो नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज द सिनेरियो। सो दिस refraction does not take place only at one face, it actually takes place at both the faces. तो फर्स्ट पॉइंट तो गलत है। सेकंड पॉइंट में जाते हैं, इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो क्या ये जो इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म, जो रे इमर्ज कर रहा है, इमर्जेंट रे है जो निकल रहा है लास्ट में, वो रे पैरेलल टू द इंसिडेंट रे है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये वाला लाइन जिसको मैंने अभी रेड से ओवरराइट किया, ये लाइन इंसिडेंट रे। इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं और इस लाइन को देखूं इमर्जेंट रे को, तो ये दोनों लाइन बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि दोनों को अगर मैं पीछे ले जाऊं, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते। सो दिस पॉइंट इज आल्सो रॉन्ग। Emergent ray and incident rays are not parallel. The third option is bends at both the surfaces towards its base. दोनों सरफेसेस पर वो बेंडिंग हो रही है, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये बात तो सही है, बेंड्स एट बोथ द सर्फेसेस ऑफ द प्रिज्म, दोनों सरफेस में बेंडिंग हो रही है। टुवर्ड्स द बेस, बेस के तरफ बेंड हो रहा है। और फोर्थ पॉइंट भी कह रहा है बेंड्स एट बोथ द सर्फेसेस ऑफ द प्रिज्म ऑपोजिट टू द बेस, बेस के ऑपोजिट। फिगर से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जब वो बेंडिंग हुई, इस पॉइंट पे फर्स्ट सरफेस पे जब बेंडिंग हुई, तो वो बेस के तरफ बेंड हुआ ना। ये देखो, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो नीचे के तरफ, बेस के तरफ बेंड हुआ। और फिर से इस पॉइंट में भी वो नीचे के तरफ बेंड हुआ, उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो नीचे के तरफ बेंड हुआ। तो ये बिल्कुल सही है कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस। दिस मींस आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An object placed in a rarer medium when seen from a denser medium. हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा रेयरर मीडियम में और उसको डेंसर मीडियम से मैं देख रहा हूं। मतलब फॉर एग्जांपल, दिस इज अ स्विमिंग पूल एंड दिस इज वाटर, दिस इज एयर, एंड सम फिश inside this swimming pool in this water is viewing any object which is in the rarer medium. So क्या लिखा हुआ है? Object is placed in the rarer medium, air is the rarer medium, and when seen from a denser medium, the observer, that means I'm talking about the fish is the observer, तो उसको क्या प्रतीत होगा? This object will appear to be farther from him, not nearer, farther from him. तो यहाँ पे होगा appears to be farther from than its real distance. उस मछली को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा दूर है एक्चुअल डिस्टेंस से, एक्चुअल डिस्टेंस के कंपैरिजन में। लेकिन उल्टा होता है व्हेन यू कीप एन ऑब्जेक्ट, से अ कॉइन, in a denser medium. So this is a denser medium, say water, and you kept that object in the denser medium and you are trying to see it from the rarer medium. This is just the opposite case of this fish वाला केस। ये जो fish वाला केस बनाया मैं, वो फिश जो ऑब्जर्वर था वो डेंसर मीडियम में था, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था। लेकिन अभी जो मैं बना रहा हूं, एक कॉइन मैंने रख दिया है डेंसर मीडियम में और देखने वाला रेयर मीडियम में, दोनों ऑपोजिट है। उस केस में ये कॉइन ऊपर के तरफ ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जर्वर के क्लोजर पहुंच गया है। इट विल बी शिफ्टेड अपवर्ड्स, मतलब इट विल अपीयर टू बी शिफ्टेड अपवर्ड्स, ऐसा लगेगा कि वो ऊपर के तरफ आ गया है। So in this case, the object will be appearing to be nearer than the real distance. लेकिन अभी जो मैंने पूछा है वो इसके ऑपोजिट केस है। उस केस में क्या होगा? The object will appear farther than its real distance. तो दोनों केसेस को समझ लो अच्छे से कि कब ऑब्जेक्ट नियरर प्रतीत होता है और कब ऑब्जेक्ट फार्दर प्रतीत होता है। प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली इस चीज को, ठीक है? मैंने दोनों केसेस डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द शिफ्ट फॉर विच कलर ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। हम जानते हैं कि रेड का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम होता है, उसका शिफ्ट भी सबसे मिनिमम होता है। शिफ्ट का क्या मतलब है? सपोज यू हैव दिस कंटेनर filled with water and you have a coin. तो मैंने अभी भी बोला था, ऑब्जर्वर इसको अगर देखेगा कहीं ऊपर से, रेयर मीडियम से,
और ये मान लो डेंसर मीडियम है, ऑब्वियसली वाटर डेंसर मीडियम है in comparison to air, this coin will be raised upwards, will appear to be raised upwards. ऐसा लगेगा कि coin ऊपर आ गया. So actual position of the coin is P, but the coin will appear to be at P dash. Now this distance is known as shift. इसको shift बोलते हैं. मतलब कितना डिस्टेंस ऐसा मुझे लगेगा कि वो शिफ्टेड अपवर्ड्स हो गया है, ऊपर की तरफ आ गया है. एक्चुअली तो नहीं गया है कॉइन वहां पे, लेकिन उसको वहां पे मुझे इमेज दिखेगा. तो ये जो डिस्टेंस है एक्चुअल पोजीशन एंड एपरेंट पोजीशन के बीच, उसको मैं बोलता हूं शिफ्ट. तो द शिफ्ट इज मैक्सिमम फॉर विच लाइट? इट इज मैक्सिमम फॉर वायोलेट. एंड द शिफ्ट इज मिनिमम फॉर विच लाइट? यू शुड रिमेंबर, मिनिमम फॉर रेड लाइट. तो मैंने अभी भी बताया था जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है रेड लाइट के लिए. एंड अभी अभी मैंने क्या बताया कि शिफ्ट भी मिनिमम होता है रेड लाइट के लिए. और वायलेट के लिए क्या? दोनों ही मैक्सिमम होता है. एंगल ऑफ डेविएशन भी मैक्सिमम होता है और तुम्हारा शिफ्ट भी वायलेट के लिए मैक्सिमम होता है. टेक अ नोट ऑफ दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. यहां पे क्वेश्चन में दो ऑप्शन हमारा करेक्ट है एंड ये बिल्कुल हो सकता है एग्जाम्स में. Which of the following relations between the critical angle and the refractive index is true? ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है. क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन फॉर्मूला. We know this formula is given in our book. Sin C is equal to sine of angle of critical angle. ये C क्या है? क्रिटिकल एंगल है. So sine of critical angle is equal to 1 upon mu. Mu क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कर देंगे उसको, रेसिप्रोकल होता है दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसी चीज को अगर मैं म्यू को इधर भेज दूं, साइन सी को नीचे भेज दूं, तो ये लिख सकता हूं म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी. दोनों सेम ही है. एक बार मैंने साइन सी को सब्जेक्ट बनाया एंड द अदर टाइम आई मेड म्यू एज द सब्जेक्ट. सो इफ यू सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. ठीक है. Option C is wrong and D is of course wrong. Done. Next question. Which of the following is incorrect about total internal reflection? Total internal reflection के बारे में इनमें से कौन सा statement incorrect है? For total internal reflection, the light must travel from rarer to denser medium. बिल्कुल ये statement गलत है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कि लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, नॉट फ्रॉम रेयर टू डेंसर. सुपर 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. एंड देयर इज अ टॉपिक कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को हमेशा डेंसर टू रेयर में जाना होता है, रेयर टू डेंसर नहीं. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो ये है. दैट मींस ये हमारा आंसर है क्योंकि इट इज इनकरेक्ट. अच्छा, बाकी सारे ऑप्शंस को भी पढ़ना चाहिए because there could be some other options also, which is the answer. For total internal reflection, the angle of incidence must be more than critical angle. ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है. इसको तो हम सही नहीं, इसको तो हम आंसर नहीं बोल सकते क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिकअप करना है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल फॉर दैट pair of media से ज्यादा हो, more than हो. So this is a correct statement, hence this is not our answer. The image produced due to total internal reflection is brighter than the image produced due to the reflection from plane mirror, and this is also absolutely true. Total internal reflection में जो image बनता है वो बहुत bright बनता है because total internal reflection में 100% रिफ्लेक्शन होता है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है. एंड मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता है एंड 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हेंस दिस इज नॉट आवर आंसर. And all the above statements are true. This is also wrong because option A is incorrect and that is our answer. हो गया. Next question. Now look at this question. In the following diagram, AB is an incident ray for which the path of the ray till it emerges out of the prism is shown below. What is the angle of deviation produced here? The angle of deviation को कैसे measure करेंगे?
यहाँ पे एक प्रिज्म, एक 90 45 45 प्रिज्म को लिया गया है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन कितना है वो तुम्हें निकालना है। देखो एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि ये जो लाइन है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे, इसको मैं एक्सटेंड आगे कर देता हूं इमेजिनरी डॉटेड लाइन से, और ये एंगल तो ऑलरेडी, लाइन तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल है वो मुझे निकालना है। तो एब्सोल्युटली ये 90 डिग्रीज है, ठीक है। सो हमें अनडाउटेडली द एंगल ऑफ डेविएशन इज 90 डिग्रीज। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। What is the cause of refraction of light? ये बहुत ही basic question है. Even in junior classes, lower classes, you have studied that the change in speed of light is basically the cause of refraction of light. ठीक है, लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ये क्वेश्चन के बाद हम चैप्टर नंबर 5 में चले जाएंगे। द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। ना तो इसका मीटर पर सेकंड हो सकता है, हर्ट्ज हो सकता है, ना मीटर सेकंड हो सकता है, कुछ नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ यू सी, ये हम चैप्टर 5 की तरफ बढ़ गए हैं, and this is the question. Which of the following statements is true for convex lens? सबसे पहले तो ये देख लो, convex lens बोले तो ये वाला लेंस, इस तरह का convex lens कौन सा ट्रू है? It is known as diverging lens. No, convex lens को क्या बोलते हैं? Converging lens. तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ट्रू नहीं है। इट कैनॉट फॉर्म अ मैग्निफाइड इमेज, एक्चुअली इट कैन फॉर्म, एंड इन ओनली इन वन केस इट कैन फॉर्म अ मैग्निफाइड इमेज। यही तो इस चैप्टर में मजे की बात है, इसमें इतने सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है कि मजा आ जाता है। तो सबसे पहले तो इमेज फॉर्मेशन हमें जान लेना है। मैं दोनों लेंसेज का इमेज फॉर्मेशन के बारे में अभी तुम लोगों को एक आइडिया दूंगा, जो कि पूरा इस चैप्टर का ऑल इन ऑल तुम्हारा कवर हो जाएगा अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द टू लेंसेज। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ये देखोगे जितने सारे केसेस हैं रे डायग्राम से इस बुक में, तुम्हारे बुक में कॉन्वेक्स लेंस के लिए, सभी रे डायग्राम्स में उसने इन्वर्टेड इमेज बनाया है। कैसा बनाया है? इन्वर्टेड इमेज। और इन्वर्टेड हमेशा रियल इमेज होता है, तो इन्वर्टेड और रियल तो एक साथ साथ चलता है। द इमेज विच इज इन्वर्टेड इज ऑलवेज रियल, एंड द इमेज विच इज रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड एंड रियल दोनों जुड़वा भाई हैं, और दोनों एक साथ ही रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इमेज इन्वर्टेड है लेकिन रियल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा ही, एकदम इसको याद कर लो। तो तुमने देखा है, तुम्हारे बुक्स में भी है कि कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये वाला लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में जितने भी रे डायग्राम्स है उसमें सभी इमेजेस इन्वर्टेड एंड रियल है, एक्सेप्ट फॉर वन। एक ही केस है जिसमें उसने वर्चुअल इमेज बनाया है, वर्चुअल इमेज बनाया है। और वर्चुअल इमेज अगर होगा तो वो अपराइट होगा ही, मतलब इरेक्ट होगा ही। अपराइट का मतलब ही इरेक्ट होता है, मतलब उल्टा नहीं होगा, एकदम सीधा होगा। सो वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा ही। एक केस मात्र है, वन केस इज देयर, ओनली वन केस, और वो केस में भी याद रखना, वो एकमात्र केस में भी इमेज मैग्निफाइड बना है। कैसा बना है? मैग्निफाइड बना है। इमेज छोटा नहीं होगा, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, मैग्निफाइड होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है, जो कि एकमात्र एक केस में बनता है, और उस केस में मैग्निफाइड इमेज ही बनेगा, कभी भी डिमिनिश्ड इमेज नहीं बनता, मैग्निफाइड ओनली, स्ट्रिक्टली मैग्निफाइड। लेकिन इन केसेस में जहां पे इन्वर्टेड एंड रियल इमेजेस बन रहा है, उन केसेस में इमेज डिमिनिश्ड भी बनता है, और इमेज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बनता है, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का सेम साइज है। ऐसा भी एक केस है जिसमें इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बन रहा है, और इसमें मैग्निफाइड भी बन सकता है। मतलब तुम लोग देखो तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये बहुत वर्सेटाइल है। ये इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है जो कि रियल इमेजेस होते हैं, इसके साइज डिमिनिश्ड हो सकते हैं, सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैग्निफाइड हो सकता है। ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है एक केस में जो अपराइट होता है, और उस केस में स्ट्रिक्टली इमेज मैग्निफाइड ही बनता है, उसमें कभी भी
डिमिनिश्ड इमेज या सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ये बेसिकली मैंने बता दिया, इसको नोट डाउन करो। अब हम चलते हैं कॉनकेव की तरफ। कॉनकेव की तरफ, कॉनकेव लेंस बेसिकली ऐसा दिखता है। दिस इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस का जो इमेज होता है ना, एकदम 100% इसको लिख लो। कॉनकेव लेंस में कभी भी हम इन्वर्टेड एंड रियल इमेज नहीं, हमेशा ही हमें वर्चुअल एंड अपराइट इमेज मिलता है, कभी भी हमें इन्वर्टेड एंड रियल इमेज नहीं मिलता है। वंस अगेन, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में कभी भी हमें इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज नहीं मिलता है। नेवर नेवर। कॉनकेव लेंस में हमेशा ही हमें कैसा इमेज मिलता है? वर्चुअल एंड अपराइट इमेज, एंड दिस इज ऑलवेज देयर। ऑल इमेजेस ऑफ कॉनकेव लेंस आर वर्चुअल एंड अपराइट। वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा ही, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो एक ही चीज को याद रखोगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा ही, और हमेशा ही वर्चुअल एंड अपराइट इमेज बनता है 100% केसेस में। इन्वर्टेड रियल बनता ही नहीं है। और इसमें जो वर्चुअल अपराइट इमेज बनता है वो हमेशा डिमिनिश्ड बनता है। डिमिनिश्ड बनता है, मैग्निफाइड कभी बनता ही नहीं है। यानी क्या बोल सकते हैं, अगर कोई तुमसे बोले कि मैंने कॉनकेव लेंस से मैग्निफाइड इमेज बनाया है, तो वो बंदा झूठ बोल रहा है। ये हो ही नहीं सकता। यू कैन नेवर प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड इमेज विद अ कॉनकेव लेंस। मैग्निफाइड इमेज कैन ओनली बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस का ना वो बहुत वर्सेटाइल नहीं है। कॉन्वेक्स बहुत वर्सेटाइल था, कॉनकेव वर्सेटाइल नहीं है। कॉनकेव में सिर्फ वर्चुअल अपराइट इमेज बनता है, और वो भी डिमिनिश्ड, ठीक है। तो मैं तुमसे अगर पूछूं कि मैंने एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस किया है लेंस से, कौन सा लेंस है, तो तुम बोलोगे सर कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, कॉनकेव लेंस भी हो सकता है, क्योंकि आपने वर्चुअल इमेज बनाया है। वर्चुअल इमेज दोनों लेंसेज में बनते हैं। लेकिन मैं अगर तुमसे बोलूं हाँ वर्चुअल इमेज जो मैंने बनाया है वो मैग्निफाइड बनाया है, मैग्निफाइड इमेज है, तो डेफिनेटली तुम बोलोगे सर वो कॉन्वेक्स लेंस ही है, क्योंकि वर्चुअल इमेज और मैग्निफाइड कॉन्वेक्स में ही बनता है, क्योंकि कॉनकेव का जो वर्चुअल इमेज होता है वो डिमिनिश्ड होता है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को हम जान सकते हैं। ये जो मैंने अभी समरी दे दिया ना टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में, ये चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक समरी, एक पैकअप मैंने बोल दिया है। अब ये इसी फैक्ट से तुम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, धमाका कर सकते हो। सो इफ यू सी द सेकंड ऑप्शन, इट कैन नॉट फॉर्म अ मैग्निफाइड इमेज, ये गलत है। हम कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफाइड इमेज बना सकते हैं, सो ये हमारा आंसर नहीं है। अब बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। बिल्कुल, मैंने अभी भी बताया था, कॉन्वेक्स में रियल इमेजेस भी बन सकते हैं, वर्चुअल इमेज भी बन सकते हैं। ये भी करेक्ट है, एंड दिस इज करेक्ट ऑप्शन जो हमें सिलेक्ट करना है। ये हमारा आंसर है एक्चुअली, बेसिकली दिस इज आवर आंसर। सो ऑप्शन 3। एंड लास्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है इट इज यूज्ड टू करेक्ट अ मायोपिक आई। ये गलत है, क्योंकि हम मायोपिया, आंखों में जो जिसका होता है मायोपिक आई, मायोपिया डिजीज का नाम है। सो मायोपिक आई को ट्रीट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। बेसिकली ये बायोलॉजिकल एक टर्म है जिसको फिजिक्स में भी इंक्लूड किया गया है। तुम लोग बायोलॉजी में पढ़े हो, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हाइपरोपिया भी बोलते हैं। सो हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, एंड मायोपिया को ट्रीट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग, ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंड दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ओके, you see what is the next question? I'm not erasing these text which I have written. Let me read this question. Which of the following statements is false for concave lens? तो लेंस का नाम अच्छे से पढ़ लो, आंखें बड़ी बड़ी करके पढ़ लो। कॉनकेव लेंस लिखा हुआ है, कॉनकेव लेंस के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से फॉल्स है, गलत है? So you see, it cannot form a magnified image. बोल रहा है कॉनकेव लेंस मैग्निफाइड इमेज बना नहीं सकता। ये ट्रू स्टेटमेंट है, मैं क्योंकि मैंने अभी अभी क्या बताया है कि कॉनकेव लेंस जो होता है, यहाँ पे देखो, कॉनकेव जो होता है वो हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है, मतलब इट कैन नॉट फॉर्म अ मैग्निफाइड इमेज। वो मैग्निफाइड इमेज बनाता नहीं है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, वी हैव टू आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। इट कैन नॉट फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉनकेव लेंस तो वर्चुअल इमेज ही बनाता है। मैंने लिखा है वर्चुअल इमेज ही बनाता है, सो इट कैन नॉट फॉर्म अ वर्चुअल इमेज गलत है, और हमें गलत को ही सिलेक्ट करना था। सो दिस इज आवर अनडाउटेडली आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द आंसर।
इट्स फोकल लेंथ इज टेकन नेगेटिव। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि कॉनकेव लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ को आपको नेगेटिव लेना है, फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ को आपको पॉजिटिव लेना है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो वो फॉल्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। एंड कॉनकेव लेंस में वर्चुअल फोकस होता है, कॉन कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सो दिस इज नॉट आवर ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light incident on a lens parallel to the principal axis after refraction passes through or appear to come from, कौन सा पॉइंट? देखो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लेंस का नाम नहीं दिया हुआ, एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है फॉर एनी लेंस, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लेंस। तो क्या लिखा हुआ है कि एक लेंस है, सपोज मैं वेक्स लेंस बनाया फॉर एग्जांपल, फिर मैं कॉनकेव से भी समझा दूंगा। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, बोल रहा है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आया, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू, तो किस पॉइंट से वो पास करेगा? हम बहुत आसान है, हम जानते हैं कि उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, लेकिन कौन सा फोकस? इस पॉइंट को हम कहते हैं सेकंड फोकस। याद रखना, जो सेकंड फोकस होता है वही प्रिंसिपल फोकस होता है, तो ये F2 है। तो सेकंड फोकस से वो पास करता है। हमेशा जो सेकंड फोकस होता है ना किसी भी लेंस का, कॉनकेव का हो या कॉन्वेक्स का हो, वही उसका प्रिंसिपल फोकस होता है, मेन फोकस होता है। और अगर हम इसका कॉनकेव वाला डायग्राम बनाएं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाता है क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। और इसको अगर हम बैक ट्रेस करेंगे, तो ये जो पॉइंट है जहां पे वो अपीयर टू मीट हो रहा है, इसलिए स्टेटमेंट में दोनों चीज कहा गया है, पासेस थ्रू और अपीयर टू कम, तो इसको बैक ट्रेस डॉटेड लाइन से करेंगे तो लग रहा है कि ये इस पॉइंट से आया है एफ, और इसका नाम F2 है। याद रखना, कॉनकेव का जो सेकंड फोकल पॉइंट होता है वो लेफ्ट वर्ड्स होता है और राइट वर्ड्स होता है कॉन्वेक्स में। तुम लोग क्लियरली आप देख पा रहे हो कि F2 पर, इन कॉन्वेक्स लेंस F2 पर रे एक्चुअली जाके उस पॉइंट से पास हुआ, इसीलिए इसको रियल फोकस बोलते हैं। लेकिन इस केस में कॉनकेव में इधर F2 पर एक्चुअली नहीं पास हुआ है, उसको मैंने डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस बैकवर्ड किया, तो वो वर्चुअल फोकस है। इसीलिए कॉनकेव लेंस का फोकस वर्चुअल फोकस होता है एंड कॉन्वेक्स लेंस का फोकस रियल फोकस होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो F2 होगा, सेकेंड फोकल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्चुअल इमेज can be obtained on a screen is always inverted, formed by actual intersection of reflected rays. It can be formed by either lenses, convex or concave. देखो वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग तुम लोग पढ़े होगे बहुत लोअर क्लासेस में, क्लास 6 में भी पढ़े होगे वर्चुअल इमेज रियल इमेज। तो जानते ही हो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, तो रियल इमेज को हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल को नहीं, तो ये गलत है। और अभी अभी मैंने बोला था कि वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, तो वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड लिखा हुआ इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये गलत है क्योंकि वर्चुअल इमेज इज नॉट इन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, अपराइट। Virtual image is formed by actual intersection of refracted rays. No, it is not formed by actual intersection. Real image is formed by actual intersection of reflected rays. अब बोल रहे हैं virtual image can be formed either by concave lens and convex lens. बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले अभी जो डायग्राम्स बना के समझाया था, पूरा ऑल इन ऑल एक धमाका वाला इमेजेस के बारे में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसमें मैंने बताया था, तुम लोग देखोगे कि कॉन्वेक्स में भी मैंने लिखा था वर्चुअल इमेज बना सकता है, कॉनकेव भी वर्चुअल इमेज बना सकता है, इनफैक्ट कॉनकेव तो वर्चुअल इमेज ही बनाता है हमेशा, और कॉन्वेक्स एकमात्र एक केस है उसमें वर्चुअल इमेज बनाता है। सो इट कैन बी फॉर्म्ड बाय आइदर लेंसेज एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब एक ऑप्शन कट रहा है, इसको मैं ऊपर कर देता हूं। यस, नेक्स्ट लिखो, देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप वाली बात है ना कॉन्वेक्स लेंस का, यही वो एकमात्र केस है जहां पे मुझे
कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज मिलता है। वंस अगेन सुनो, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, कॉन्वेक्स लेंस में एक केस है, सिर्फ एक ही केस है जहां पे तुम्हें वर्चुअल इमेज मिलता है, और वो उसमें भी मैग्नीफाइड इमेज मिलता है। बाकी जितने भी केसेस है कॉन्वेक्स में, उसमें सब में तुम्हें इन्वर्टेड रियल इमेजेस मिलते हैं। तो वो जो केस है ना सिंपल माइक्रोस्कोप वाला, जो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप में, इट इज दैट वन सिंगल केस विच इज देयर इन कॉन्वेक्स लेंस वेर यू ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज विच इज मैग्नीफाइड। क्योंकि माइक्रोस्कोप में तो हमें मुझे मैग्नीफाई ना करना है ऑब्जेक्ट को, मैग्निफिकेशन होगा तो उसे ही तो माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो उस केस में हम कहां ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहां इमेज बनता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उस केस में क्या करते हैं ना, ये हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है सेकेंड फोकल पॉइंट, और ये ट्वाइस ऑफ f2 है। याद रखना उस केस में हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर O और फर्स्ट फोकल पॉइंट के बीच रखते हैं। यू सी आई हैव केप्ट दिस ऑब्जेक्ट, दिस एरो इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फर्स्ट फोकल पॉइंट। एंड इमेज कहां बनता है, इमेज यहां कहीं पीछे बनता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, मींस इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही बनता है। और ये इमेज भी देखो वर्चुअल इमेज है, सीधा है, एरो ऊपर ही है, मतलब इसका एरो उल्टा नहीं हुआ है। सो वर्चुअल इमेज है, और साइज में भी देखो ये बड़ा है, इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज छोटू सा, इमेज बड़ा सा। सो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द you can say left side of the lens, which is also known as images formed in front of the lens. Image is magnified, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 के बीच में। तो लेट मी रीड ऑल द ऑप्शंस एंड सी, लेट अस सी इफ देयर इज एनी ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट अबाउट दीज इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट। तो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है, मैंने अभी भी बोला ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में हो। इमेज ऑब्टेन्ड इज मैग्निफाइड एंड रियल, यहीं पे गलत हो गया, मैग्निफाइड तो है, रियल नहीं है, क्योंकि वर्चुअल है। वर्चुअल है, अपराइट है ना, अपराइट होगा तो वर्चुअल ही होगा, रियल नहीं होगा, ये पॉइंट गलत हो गया। इमेज इज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल तो है, डिमिनिश्ड नहीं है, क्योंकि मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड नहीं है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द लेंस, ये भी गलत है, बिहाइंड नहीं, इन फ्रंट ऑफ द लेंस हुआ है, इमेज कहां बना है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो डी भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज -0.3, ध्यान से देख लो, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -0.3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ स्टेटमेंट का स्पेलिंग गलत है, यहाँ टी होगा, एनीवे दैट डजंट मैटर, तुम लोग समझ रहे हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तुम्हें निकालना है। तुम्हारे पास ये स्टेटमेंट्स हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, द लेंस इज कॉनकेव, दूसरा है इमेज इज वर्चुअल, सेकेंड, थर्ड है इमेज इज मैग्निफाइड, डी है लेंस इज कॉन्वेक्स। अब मैं एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट फिर देने वाला हूं, सुनो। मैग्निफिकेशन देखकर हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, लिख लो, अब मैं जो बोलने वाला हूं धमाकेदार इंफॉर्मेशन है, नोट डाउन करो। अगर कभी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, जैसे कि इस इसको देखो 0.3, पहले इस साइन को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस, माइनस को भूल जाओ, सिर्फ 0.3 को देखो, तो 0.3 इज लेस देन 1। तो अगर कभी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इग्नोर द माइनस साइन और प्लस साइन, वट एवर इट इज, इफ इट इज ओनली लेस देन 1, इग्नोरिंग द साइन, देन डेफिनेटली द इमेज इज डिमिनिश्ड इमेज। कैसा इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है। और अगर ए मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो, जैसे मैग्निफिकेशन 2 है, 3 है, तो वो कैसा इमेज है, मैग्निफाइड इमेज है, यानी एनलार्ज्ड इमेज है। और मैग्निफिकेशन अगर इक्वल टू 1 है तो कैसा इमेज है, सेम साइज, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है, मतलब कोई मैग्निफिकेशन ही नहीं है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है इमेज का भी उतना ही साइज है, मैग्निफिकेशन हुआ ही नहीं है, ना तो छोटा हुआ है, मतलब ना तो डिमिनिश्ड हुआ है, ना ही मैग्निफाइड हुआ है, तो सेम साइज, इमेज इज सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम साइज। ये एक हो गया। दूसरा इंफॉर्मेशन है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है
पॉजिटिव है तो इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल होगा तो डेफिनेटली, मैं बार बार बोल रहा हूं, वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा ही, मतलब इरेक्ट होगा ही। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही। ये एक बॉम्ब ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब इस मैग्निफिकेशन को देखो, एक तो ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन तुम्हें क्या बता रहा है कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। रियल है, इन्वर्टेड है, ये बता रहा है। और 0.3 को देखो, 0.3 इज लेस देन 1, लेस देन 1 बता रहा है डिमिनिश्ड इमेज। और अभी मैंने ऊपर में थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया कि डिमिनिश्ड इमेज कब बनता है और रियल इन्वर्टेड इमेज किस लेंस में बनते हैं। तो देखो, डिमिनिश्ड इमेज दोनों लेंसेस में बनता है। सिर्फ अगर इसको देखोगे, डिमिनिश्ड इमेज दोनों लेंसेस में बनता है। तो सिर्फ 0.3 को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये तो कॉन्वेक्स में भी डिमिनिश्ड इमेजेस होता है, कॉनकेव में भी डिमिनिश्ड इमेजेस होता है। लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड, क्या कॉनकेव में कभी भी रियल इमेज बनता है? नहीं, मैंने अभी बताया था, कॉनकेव में हमेशा 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 वर्चुअल इमेज बनता है। तो अगर ये रियल इन इमेज है तो, और वो डिमिनिश्ड इमेज है, तो डेफिनेटली ये कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन है लेंस इज कॉनकेव, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तुम्हारा रियल इमेज है, तो ये हो नहीं सकता। इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल नहीं है, हम जानते हैं रियल है, तो इसको भी काट देते हैं। इमेज इज मैग्निफाइड, नहीं, इमेज डिमिनिश्ड है। लेंस इज कॉन्वेक्स, बिल्कुल हाँ, हमने पता कर लिया, लेंस कॉन्वेक्स है। तो देख रहे हो, मैग्निफिकेशन का वैल्यूज देख के कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू आर नोटिंग डाउन दीज इंफॉर्मेशंस, बॉम्ब ऑफ इंफॉर्मेशंस विच आई एम प्रोवाइडिंग यू। ओके, और ये बातों को याद रखोगे ना तो बड़े बड़े सवाल, और काफी सारे सवाल जो लाइट पे आने वाले हैं, तुम लोग कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑन रिड्यूसिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, इट्स पावर। देखो, फोकल लेंथ और पावर में बड़ा ही सिंपल सा रिलेशन है। पावर होता है, पावर ऑफ लेंस होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घट जाएगा, उल्टा होगा, वाइस वर्सा। तो क्या बोल रहा है, रेड्यूसिंग द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं तो पावर विल इंक्रीज। एकदम सीधी बात है, नो बकवास है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंस ऑफ पावर प्लस 2 डायोप्टर इज। अब फिर से मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। पावर का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे तुमको निकालना है फोकल लेंथ कितना होगा, और वो भी कौन सा लेंस है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कॉन्वेक्स लेंस का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पावर भी कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि पावर 1 अपॉन एफ होगा ना, ये तो फॉर्मूला है पावर का, 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस में। और कॉनकेव में क्या होता है, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव लेते हैं कन्वेंशनली, तो पावर विल ऑल्सो बी नेगेटिव, क्योंकि एक ही रिलेशन है, पावर इज 1 अपॉन एफ। तो इफ फोकल लेंथ इज नेगेटिव, पावर विल ऑटोमेटिकली बिकम नेगेटिव। तो यहाँ पे पावर का जो साइन है वो प्लस है, क्वेश्चन में देखो, देखो देखो, क्वेश्चन में देखो, पावर का साइन प्लस है। तो प्लस है, दैट मींस दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शंस यहां से कट जाएगा, जिसमें भी कॉनकेव लिखा हुआ है वो काट दो, दैट इज नॉट देयर, तो कॉनकेव वाला ऑप्शन तो कट गया। तुम्हारे पास अभी दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अब हमें निकालना है फोकल लेंथ। याद रखना, ये जो फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, इसमें एसआई यूनिट्स में सारा चीज होगा, क्योंकि ये जो डायोप्टर है ये पावर का एसआई यूनिट है। तो फोकल लेंथ एफ जो कि एक्चुअली एक लेंथ है, तो उसका आंसर भी तुम्हें एसआई यूनिट में आएगा। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा फोकल लेंथ इज 1 अपॉन पी हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, इसी इसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। फोकल लेंथ 1 अपॉन पी कितना है, 2, तो 1/2 दैट इज 0.5। ऐसा यूनिट में आएगा फोकल लेंथ, मतलब लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो 0.5 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, यानी ये ऑप्शन तो कट गया। तो हमारा कॉन्वेक्स लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे लेंस होगा, लेंथ गलती से आ गया, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर, दिस इज आवर
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस formed 5 times magnified and erect image of an object placed at 20 centimeter in front of it. The position of the image is बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहले तो लेंस का नाम देख लो, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फॉर्म्ड 5 times मैग्निफाइड, तो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 5, लेकिन 5 + 5 या -5, +5 या -5 वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इरेक्ट इमेज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैग्निफिकेशन अगर प्लस है तो वो इरेक्ट इमेज है, यानी वर्चुअल इमेज है, यानी अपराइट इमेज है। और अगर रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। तुम लोगों ने लिख लिया होगा उस बात को, मैंने लिखने के लिए कहा था, देखो लिखा है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो वो इन्वर्टेड इमेज है, रियल इमेज है। मैग्निफिकेशन प्लस है तो वो इरेक्ट इमेज है। क्वेश्चन ने बोल दिया इरेक्ट इमेज है, मतलब ये मैग्निफिकेशन +5 है। ये साइन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पे गलती से भी प्लस की जगह माइनस लिख दिए या माइनस की जगह प्लस लिख दिए तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। द क्वेश्चन विल नॉट टेल यू, यू हैव टू इंटेलिजेंटली आइडेंटिफाई द साइन। तो इरेक्ट इमेज है तो +5 है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, सिंपली इट्स अ नंबर, आइदर +5 -5 और एनीथिंग, एनी नंबर विथ प्लस एंड माइनस साइन। ठीक है, दूसरी बात कि कॉन्वेक्स लेंस है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। अब क्या आगे बोला जा रहा है कि ये बना रहा है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हमने, ऑब्जेक्ट का इमेज जो 5 times मैग्निफाइड है, उस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। यानी ये जो 20 सेंटीमीटर है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम जानते हैं साइन कन्वेंशन से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी भी लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस हो कॉनकेव लेंस हो, वो नेगेटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, सो ये u दिया हुआ है -2 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हमारे बाकी सारा जो यूनिट्स है ना आंसर में भी, वो सेंटीमीटर में ही है, तो हमें कन्वर्ट करने की अभी फिलहाल मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन भी सेंटीमीटर में ही है, तो उसे मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा मैग्निफिकेशन +5 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन इज V/U, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू 5 है, v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू -20 है, तो v इज इक्वल टू 5 इंटू -20 -100 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू 100 तो पता चल गया, लेकिन -100 क्या बताता है? समझ सुन लो, माइनस अगर कभी आया, माइनस का मतलब ही होता है इन फ्रंट, और प्लस का मतलब होता है इन विच केस, in case of u and v I'm talking about object distance and image distance, उस केस में मैं बोल रहा हूं कि माइनस अगर आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मतलब ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही रखते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने बताया u हमेशा ही नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तुम लेंस के हमेशा इन फ्रंट में ही रखोगे ना, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब इन फ्रंट, और प्लस पॉजिटिव अगर आता है कभी हमारा v का वैल्यू, तो वो होता है बिहाइंड, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे। यानी ये अगर हमारा लेंस है, देखो मैंने यहाँ लेंस बनाया एक कॉन्वेक्स लेंस, तो लेंस के इस रीजन में, लेफ्ट साइड में, मतलब कि ये वाला रीजन जिसको मैंने शेड किया, ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस बोलेंगे, तो इसको नेगेटिव साइड से डिनोट करते हैं। और इस साइड को, जिसको मैंने अभी वेव से बनाया है, वो पॉजिटिव साइड होता है, पॉजिटिव मतलब राइट साइड पॉजिटिव होता है। तो मतलब बिहाइंड द लेंस है वो पॉजिटिव होता है। तो हमारा यू जो वी आया है वो नेगेटिव आया है, नेगेटिव का मतलब इन फ्रंट। तो हम आंसर क्या होगा? 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये 100 सेंटीमीटर वैल्यू आ गया। इन फ्रंट कैसे पता चला? विद द नेगेटिव साइन दैट वी हैव गॉट इन द आंसर ऑफ वी। वी का वैल्यू -100 आया, वो माइनस बता रहा है कि ये इन फ्रंट है। अगर +100 आता तो बिहाइंड द लेंस बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
On keeping a lens near a printed page, if the letters appear magnified, the lens is, देखो तुम एक प्रिंटेड पेज के पास ले जाओ लेटर को, लेंस को, तो लेटर्स मैग्निफाइड दिखेंगे। और ये वही केस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है। तो वो हम वहां पे कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, तो लेंस इज डेफिनेटली कॉन्वेक्स। अच्छा, ये एक तरीका भी है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेंस कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। ये एक स्पेशल हेडिंग में तुम्हारे बुक में कॉन्साइज में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर तुम्हारे पास दो लेंस दे दिए गए, तुमको बिना टच किए हुए, मतलब टच तो करके हम बता ही सकते हैं, लेकिन बिना टच किए हुए वाले मेथड से अगर तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेंस क्या है, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, तुम लेंस को उठाओ और बुक के पास ले जाओ, पेज अपने, एक किसी भी पेज जिसमें लेटर्स लिखे हुए हैं, एंड यू ब्रिंग द लेंस नियर टू द लेटर्स। इफ द लेटर्स अपीयर मैग्निफाइड, द लेंस इज डेफिनेटली कॉन्वेक्स। If the letters appear diminished, the lens is definitely concave. कॉनकेव में हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनता है, तो ये मैग्निफाइड हुआ तो ये कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी एक तरीका है, हम ये बता सकते हैं लेंस कैसा लेंस है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। यू सी, ऑन सीइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट थ्रू द लेंस, इफ इट्स इन्वर्टेड इमेज इज सीन, तो इन्वर्टेड इमेज कभी भी कॉनकेव में नहीं बनता है। मैंने अभी भी ऊपर में बताया था क्वेश्चन में कि इन्वर्टेड इमेज कभी भी कॉनकेव लेंस में नहीं बनता है। तो इन्वर्टेड इमेज बना है तो ये भैया कॉन्वेक्स ही है, कॉनकेव हो नहीं सकता। तो दोनों केसेस में ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Where should the object be placed in front of a convex lens so that its inverted image of the same size as that of the object may be obtained? कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा कौन सी जगह पे मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा ताकि इमेज जो मुझे मिले वो सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट मिले। नाउ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर में बताया था कि ये कॉन्वेक्स लेंस बड़ा वर्सेटाइल होता है। इसमें तुम हर तरह के साइज के साइज की इमेज बना सकते हो, डिमिनिश्ड इमेज भी बना सकते हो, मैग्निफाइड इमेज बना सकते हो, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हो। तो ये वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि किस जगह पे तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे, तुम्हें इमेज जो मिलेगा वो सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन इज आस्किंग इन्वर्टेड इमेज बनेगा, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये वो केस है जहां ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, 2f2 में रखते हैं। कहां पे रखते हैं, 2f2 में। ये तुमको याद रखना है बेसिकली। यहाँ पे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे ये f1 है, ये 2f1 है, 2f1 पे रखते हैं, 2f1 पे रखते हैं। डिड आई से 2f2? 2f1 which is the second option. So f1 2f1, इधर हमारा f2 है, इधर 2f2 है। तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f1 में, और जो हमारा इमेज बनेगा, जो इमेज बनेगा वो 2f2 पर बनेगा। हालांकि मैंने अभी फ्री हैंड बनाया है तो इमेज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल, लेकिन जब अगर हम अकॉर्डिंग टू द स्केल बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट को अगर हम 2f1 पे रखते हैं तो हमारा इमेज भी 2f2 में बनता है। ऑब्जेक्ट को 2f1 में रखेंगे तो इमेज 2f2 पे बनता है, और वो दोनों का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज सेम होता है। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, एट 2f1। एंड वेयर विल द इमेज फॉर्म, अगर ऐसा पूछेगा वेयर विल द इमेज फॉर्म, इट विल बी फॉर्म्ड एट 2f2। ऑब्जेक्ट कहां पे बन रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट कहां पे रखे हैं, 2f1। इमेज कहां पे बन रहा है, 2f2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं, 2f1, इमेज कहां बनेगा, 2f2। साइज क्या होगा इमेज का, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया अच्छा वाला क्वेश्चन, मजेदार, फेवरेट मेरा। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव बोला है, कॉनकेव का मतलब ही है कि ये वर्चुअल इमेज बनेगा, कभी भी इन्वर्टेड एंड रियल बन ही नहीं सकता कॉनकेव में। यहाँ इमेज के बारे में कुछ बोला नहीं है, कॉनकेव लेंस बोल दिया है। तो ये, लेकिन हम समझ गए हैं कॉनकेव लेंस है तो ये वर्चुअल इमेज ही बनेगा। अब इतना तुम जान गए, वर्चुअल इमेज बनेगा, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, द साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड इज 3 सेंटीमीटर, यानी आई मीन साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज को किस सिंबल से डिनोट करता है, आई। और आई अगर
वर्चुअल है यानी इरेक्ट है तो प्लस में डिनोट करते हैं, तो +3 सेंटीमीटर। अगर ये इन्वर्टेड इमेज होता ना, उसका साइज दिया हुआ होता इन्वर्टेड इमेज का साइज, तो आई को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ये आई को मैंने +3 लिया। कैसे पता चला कि प्लस होगा? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज है कैसे पता चला? क्योंकि कॉनकेव लेंस है, इससे ऐसे पता चला। और फिर बोल रहा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भैया कैसे होगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ही सीधा होता है, ऑब्जेक्ट को कभी उल्टा नहीं रखते, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज केप्ट अपराइट। तो ऑब्जेक्ट इज वेदर इट इज कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो +6। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला है I/O, आई का वैल्यू +3, ओ का वैल्यू +6, तो काट दो 1/2 यानी 0.5। So you have 0.5, not -0.5, +0.5 as the answer. ठीक है, सो दिस इज द मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन देखो +0.5 है, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पता चल रहा है कि इमेज डिमिनिश्ड है, और हम जानते हैं कॉनकेव में डिमिनिश्ड ही होता है। मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, ऊपर में लिखे होंगे तुम लोगों ने, कॉनकेव में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनता है। डिमिनिश्ड कैसे पता चला? क्योंकि <<1 है, मैग्निफिकेशन इज <<1, इसीलिए डिमिनिश्ड है। पॉजिटिव है, प्लस साइन है, 0.5 के पहले प्लस साइन है। प्लस क्या बता रहा है? कि ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, और बिल्कुल सही बात है, कॉनकेव में तो वर्चुअल ही होता है, इरेक्ट ही होता है। दैट मींस इन ऑल एस्पेक्ट्स आवर आंसर इज करेक्ट। हमने वेरीफाई, इसको बैक से पीछे से वेरीफाई भी कर लिया, और हमने वेरीफाई करके देख लिया एकदम बिंदास आंसर करेक्ट है। ठीक है, नाउ दिस इज योर 14th क्वेश्चन एंड द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा, क्वेश्चन 15th, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। when a light ray passes through which of the following points the ray passes undeviated? देखो ये हमारा प्यारा सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर रे इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, कौन से पॉइंट से? देखो ये अनडेविएटेड चला गया, इस पॉइंट को, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रे पास होता है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो यहां से अगर कोई रे पास हो रहा है ना, तो वो कोई डेविएट नहीं करता है, बिल्कुल सीधा निकल जाता है। तो याद रखना, कौन से पॉइंट से रे पासेस अनडेविएटेड? एकदम बिंदास आंसर बोलो, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर इजी क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर नेम द लाइन XY। इस XY को क्या बोलते हैं? ये तो कोई भी बता देगा कि XY लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। So C, principal axis is the correct option. With this, I end this video. I hope you all like this video. If you have liked it, please give a like to the video. Like button ko press karna, share it with others, and subscribe to my channel if you have not subscribed. Till then, God bless you. Love you all. Take care.